Hello champions, welcome to the next lecture on the Frobenius method. Today we will discuss the last type named as the type 4 when some coefficients becomes infinity. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the playlist of the ordinary differential equation. The last 3 types of the Frobenius method is available in this playlist. Apart from then the power series solution, ordinary and singular point all are available in this playlist. Now, as I mentioned you, the Frobenius method is applicable whenever the coefficient of the y double prime must be 1 and the given point x is equal to x naught is my regular singular point. Then only you can apply the Frobenius method. In order to apply the Frobenius method, we can take the solution is in the form of an x raised to power r plus n. यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली जरूरत है. I can write x की पावर r plus n in the form of x minus 0 raised to power r plus n. That means we are talking about, we can find the series solution about the point x is equal to 0. बट जैसे मैंने प्रीवियस के 3 लेक्चर्स अपलोड करे, सम स्टूडेंट आस्क मी सर हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1. तब आप तो ये वाला फॉर्मूला नहीं ना लगा सकते बिकॉज दैट इज अबाउट द पॉइंट 0. फाइन. सो आवर टारगेट इज वी कैन कन्वर्ट x इज इक्वल टू 1 into x is equal to 0, or in general for any arbitrary point we can replace x minus x naught to be 0. फाइन. फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल में x minus 1 को आप x में लिख लो, आप एक नया वेरिएबल ले लो, h ले लो, चॉइस आपकी है. फाइन. मैं सेम x ले रहा हूं जिससे आपकी कैलकुलेशन और प्रोसीजर सिमिलर रहेगा. फाइन. आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द x विच इज इक्वल टू ये दिस इज अ रेड ऑफ x प्लस 1. आई कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ द x एट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. तो जैसे फिल करोगे देन वी कैन सॉल्व इन द यूजुअल मैनर. क्लियर. नाउ whenever we want to apply the Frobenius method about the point x is 0, your target is to find the value of the an. Fine. And for finding the value of the an, you firstly need to calculate the initial equation, and that initial equation is basically the quadratic equation. फाइन. और जैसे आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट द टू रूट्स r1 एंड r2. बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द r1 एंड r2 आई कैन क्लासिफाई एज ए टाइप नंबर 1, 2, 3 and 4. The first 3 types are already discussed in our previous lectures. Now today I will cover when during the calculation some coefficient becomes infinity. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ द फ्रॉबनियस मेथड. इस लेक्चर के बाद आप कौन सी नया लेक्चर सीरीज मेरे से चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. मैं वो सब्जेक्ट आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा. इफ यू वांट अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, let me know. If you want a numerical analysis, let me know. I can start that new lecture series after this video. Fine. चलिए, so make sure students whenever any of the coefficient of the y becomes as infinity, then we can always find the roots. For example, say r is equal to r1. Whenever r is equal to r1, coefficient of the y becomes infinity. Then we can find the solution corresponding to the r is r1 by using partial derivative. और अगर आपको याद हो ये लेक्चर हमने टाइप 2 मेथड में भी यही ऐसा ही करा था. फाइन. पार्शियल डेरिवेटिव ही करते थे ना वहां पे. तो सेम वे वी कैन डू इन दिस लेक्चर. चलिए एग्जांपल से समझाते हैं. सबसे पहले योर टारगेट इज टू मेक द कोएफिशिएंट टू बी 1. सो आई कैन डिवाइड बोथ साइड बाय x into 1 minus x. Now if you want to calculate the values at the point 0, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है then by default it means x is 0. The value of the px will be minus of 3. Value of the qx will be infinity. Now since infinity is there, so that point x is equal to 0 is my singular point. In order to check about the regular singular point, we need to calculate the x into px, x square into px, which both are my finite. Therefore the Frobenius method is applicable.
once you can apply the Frobenius method, we can start with the solution. Take the derivative y dash. What is the derivative of the y with respect to x? n plus r is outside, x raised to power n plus r minus 1. Similarly, you can find the second derivative, you will get the y double prime. I can plug the value of the y prime and y double prime in the given differential equation. इस वाली इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं मैं? x माइनस एक्स स्क्वायर y डबल प्राइम माइनस 3xy प्राइम माइनस ऑफ y0. I can multiply each quantity and open the bracket. तो ये मेरे 4 टर्म्स आ गई. फाइन. अब मैं इसमें पेयर बना लेता हूं, n प्लस आर, n प्लस आर, n प्लस आर. तो ये पहली वाली वैल्यू तो आपकी ऐसा ही रह जाएगी. फाइन. इसमें से मैं माइनस कॉमन लेके समेशन कॉमन ले रहा हूं. फाइन. एक an कॉमन आ जाएगा और एक x की पावर n प्लस r कॉमन आ गई. तो अंदर देखो क्या क्या रह गया आपके पास. यहां से क्या रह गया? n प्लस आर माइनस 1. नेगेटिव बाहर से कॉमन लिया हुआ है तो दैट्स अ प्लस 3 ऑफ n प्लस आर माइनस माइनस प्लस 1. इसको ओपन कर लो. n प्लस आर इज अ कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू साइड. सो बाकी क्या रह गया? n प्लस आर प्लस ऑफ 2 प्लस 1. फाइन. अब आप देखो r की वैल्यू को कंबाइन करना सिमिलर वे जिस तरह से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 को सॉल्व करा है. आई कैन रिप्लेस n टू बी n माइनस 1. तो कहीं पे भी n लिखा हुआ, आई कैन रिप्लेस n टू बी n माइनस 1. तो आपके पास एक्सप्रेशन रिप्लेस होके ये आ गई. नाउ सिंस द पावर इज सेम, फाइन, नाउ आई कैन ओपन द ब्रैकेट्स. n इज इक्वल टू 0. सो r माइनस 1 a0 x की पावर r माइनस 1. उसके बाद n इज इक्वल टू 1, तो वो तो सेम है. तो आई कैन टेकन n इज 1 टू इंफिनिटी, x की पावर n प्लस r माइनस 1 कॉमन. फाइन. तो बाकी क्या रह गया? ये वाली क्वांटिटी प्लस ये वाली, सॉरी ये माइनस है तो दैट विल बी माइनस ऑफ दैट क्वांटिटी. फाइन. आई कैन कंपेयर, equate the coefficient on the both side. I can write 0 as a 0x plus 0x square and so on. That means the first value will be 0, second value will be 0. Once you substitute, you will get r is 0 and r is 1 because a naught can never be 0. I can find the value of the an, that will be n plus r square divided by n plus r into n plus r minus 1. So 1 n plus r will be cancelled out. Now for the different value of the r, I can make the two pairs जैसे टाइप थर्ड में हमने देखा था. फाइन. ये सिर्फ इसलिए चेक करते हैं ताकि कोई वैल्यू इंफिनिटी तो नहीं जा रही. When r will be 0, then it will be n over n minus 1, an minus 1. When r is equal to 1, it's a n plus into n. तो क्या कोई नंबर आपका इंफिनिटी जा रहा है? तो यू कैन सी दैट ये वैल्यू इंफिनिटी कब जाएगी? व्हेन n is equal to 1. yes, and 1 is possible, so that quantity will goes to the infinity. fine. और ये नंबर इंफिनिटी कब जाएगा? व्हेन n is equal to 0, but that is not possible. fine. और ऊपर वाली वैल्यू फाइनाइट है, so that means we can apply the type number 4. fine. और एक और भी बता दे रहा हूं आपको. fine. so you need a two solutions. fine. जो पहला सोल्यूशन जो आपके पास है ये आपका 0 जा रहा है ना, सॉरी इंफिनिटी. तो इसका तो सोल्यूशन मिलेगा आपको डेल वाई अपॉन डेल आर कॉरस्पॉन्डिंग टू आर इज इक्वल टू 0. और यहां पे आपका इंफिनिटी नहीं जा रहा, देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द y1. सो आपका टारगेट है ये दोनों सोल्यूशन को निकालना. तो सबसे पहले मैं फाइनाइट वैल्यू का निकाल देता हूं. आई कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ द r इज 1. सो आपका an कितना हो गया? n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n. फाइन. सो क्यों r 0 पे वैल्यू आपकी इंफिनिटी जा रही है तो इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा पार्शियल डेरिवेटिव से. चलिए सबसे पहले फाइनाइट वैल्यू का निकालते हैं. फाइन. तो फिल करते हैं n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन. n की वैल्यू 1 फिल करी, सो 2 ओवर 1 a नॉट. 2 फिल करा आपने, 3 ओवर 2 a 1, 4 ओवर 3 a 2 एंड सो ऑन. अगेन आई कैन सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ द a1 सब्सटीट्यूशन कर दो, 2 से 2 कैंसल, a3. a2 की वैल्यू कर दो 3 ऑफ a नोट एंड सो ऑन. फाइन. सो देयरफॉर
you can substitute the value of y equal as a y1 a naught a1x plus a2x square and then so on. r की वैल्यू कितनी है 1, a naught will be a naught a1 twice of a naught, then 3 times a naught plus so on. So a naught will be outside. Fine, where a naught is my constant. So 1 plus 2x plus 3x square and so on is the one solution corresponding to r is equal to 1. Clear? Now, in order to find the value of the r is 0, so we need to find partial derivative of y with respect to r. So I can take an an. देखिए या इसका क्या मतलब है, पहले r के साथ डेरिवेटिव करना है, उसके बाद वैल्यू फिल करनी है. लेकिन यहां ये वैल्यू कहां से आई थी, यहां हमने r की वैल्यू पहले फिल कर दी थी. सो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस जर्नल वैल्यू. फाइन, अब इसमें a1 a2 a3 फिल करते हैं. व्हेन n इज 1 प्लस r ओवर r into a0 a2 n is equal to 2, that means r plus 2 divided by r plus 1 of a1. n is equal to 3, r plus 3, r plus 2 of a2 and so on. Again मैं यहां पे फिल कर देता हूं a1 की वैल्यू r plus 1 will be cancel, r plus 2 over r of a naught, r plus 2 will be cancel. Fine, that will be again r of a naught and so on. तो आप देख सकते हो whenever r, ये corresponding किसके निकाल रहे हैं हम, 0 पे. whenever r is 0, your a1 will goes to the infinity, a2 will goes to the infinity, a3 will goes to the infinity, each coefficient will goes to the infinity. जब सारे के सारे coefficient infinity पे जाएंगे, we can get this solution as a partial derivative. तो मैं फिर से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं, y is equal to xr, फाइन, इंटू a नोट a1 a2 एंड so on. तो आपने यहाँ पे a नोट a1 a2 a3 सबकी वैल्यू फिल कर दी. नाउ क्लियरली से व्हेन r अप्रोचेस 0, ये इंफिनिटी चला जाएगा. आई कैन टेक द एलसीएम, a नोट मैं बाहर ले रहा हूं, फाइन, और मैं r का एलसीएम ले दे रहा हूं साथ में. तो ये क्या बन गया आपके पास, r प्लस 1 ऑफ x प्लस r प्लस 2 ऑफ x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस डॉट 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 है, प्लस एंड डॉट डॉट डॉट. नाउ बिकॉज a0 is my constant, r is my constant, so the ratio is also the constant. I consider a naught by r is another constant, let's say c of 2, fine, or c1. Now you get the y, now you can differentiate with respect to r. तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा ना, c1 is a constant, x की पावर r log of r, बिकॉज a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ax log of a. तो मैंने वही करा है, इंटू r प्लस 1x एंड सॉन, प्लस सेकेंड c1 x की पावर r इज आउटसाइड, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू r. तो ये कितना हो गया, 1 प्लस x प्लस 2x स्क्वायर प्लस सॉन. क्लियर? नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r इज माई 0. 0 पे निकालनी है ना वैल्यू, तो 0 पे निकालोगे दैट नंबर विल बी 0, दैट इज नंबर इज 1, फाइन, दैट नंबर इज 2x स्क्वायर 3x क्यूब एंड सो. अगर आप y1 का वैल्यू देखो पीछे कितना है, तो दैट नंबर इज माई y1. इसमें से x कॉमन ले लो, फाइन, वहां पे भी x कॉमन ही था ना, आप पीछे देखें, मैं भी आपको दिखा देता हूं, ये आपके पास y1 था. यू कैन सी व्हाट इज योर y1. y1 इज a नोट x, इसको मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x, सॉरी x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब एंड सो ऑन. तो आप देखो ये सेम एक्सप्रेशन आपके पास है, x प्लस 2x स्क्वायर. अगर मान लो कांस्टेंट का डिफरेंस होता, वो इस कांस्टेंट से एडजस्ट हो जाता. तो ये कितना हो गया, y1 log ऑफ x प्लस c1, मैं सभी में से कॉमन लेकर दे रहा हूं, फाइन, यहां भी c1 है ना, तो आपके पास ये आपका आंसर हो गया. नहीं तो आप यहां पे भी छोड़ सकते हो अपना आंसर. सो फाइनल आंसर विल बी जो y1 का आंसर आया है और जो पार्शियल डेरिवेटिव इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. चलिए नेक्स्ट करते हैं. इसको भी पहले कोएफिशिएंट 1 बना लो, फाइन.
Now clearly say px will goes to the infinity. So therefore x is equal to 0 is my singular point. And रेगुलर बनाने के लिए क्या करोगे आप? x इंटू पी एक्स एक्स स्क्र इंटू क्यू एक्स को चेक करोगे. इसकी लिमिट कितनी चलेगी? 1. और इसकी लिमिट कितनी चलेगी? -1. सो बोथ आर फाइनाइट, देयरफॉर x is equal to 0 is the regular singular point. Substitute the values in the Frobenius method. Find the y prime summation n plus r an x raised to power n plus r minus 1 और y डबल प्राइम कर दो. Plug all these values of the y prime and y double prime in the given differential equations. ब्रैकेट इसके बाद x स्क्वायर -1 के साथ ब्रैकेट खोल देंगे ओपन, यू विल गेट द एक्सप्रेशंस. पेयर बना लो n प्लस आर n प्लस आर n प्लस आर. तो इसमें से आपका एक तो समेशन n इज इक्वल टू 0 कॉमन है और एक x की पावर n प्लस आर कॉमन है. an भी कॉमन है. फाइन, कोफिशिएंट an है ना सभी में, तो बाकी क्या रह गया अंदर? n प्लस आर ये वैल्यू. फाइन, n प्लस आर, इनमें से n प्लस आर कॉमन निकाला मैंने, तो अंदर क्या बच गया? n प्लस आर -1 प्लस 1, तो 1 से 1 कट गया, दैट्स अ होल स्क्वायर, और इधर से -1, और ये आपके पास n प्लस 2 वाली एक टर्म सेपरेट होगी. नाउ इन दोनों में से छोटी नंबर कौन सा है? दैट इज माई स्मॉलेस्ट नंबर. तो आप इसमें क्या करोगे? यू कैन रिप्लेस n टू बी, n में क्या सब्स्टिट्यूशन करूं कि n प्लस आर बन जाए? n -2. अब तक तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए लास्ट की 4 वीडियो से. फाइन, तो हर जगह पे n की जगह पे n -2 सब्स्टिट्यूशन कर दो. क्लियर? अब इसकी ब्रैकेट खोल लेते हैं. कितनी आ जाएगी ब्रैकेट खोल के? 2 तक खोलनी है. 0 फिल करेंगे, आर स्क्वायर -1 a0 x की पावर r. 1 फिल करो, n प्लस 1 स्क्वायर -1 इंटू a1 x की पावर 1 प्लस r प्लस, और फिर 2 के लिए कॉमन आ जाएगी ब्रैकेट. यू विल गेट दिस आइडेंटिकल इक्वेशंस. दोनों तरफ इक्वेट कर लो. फर्स्ट वैल्यू विल बी 0, सेकेंड वैल्यू विल बी 0, थर्ड वैल्यू विल बी 0. इसके रूट्स बना लो. कितने आ जाएंगे? 1 -1. क्लियरली से द रूट्स आर माई डिस्टिंक्ट, और दोनों का डिफरेंस क्या है? इंटीजर. क्लियर? जैसे r की वैल्यू इसमें फिल करो, व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2. 4 - 3 a1 इज 0, a1 विल बी 0. व्हेन r इज इक्वल टू -1, अगेन a1 विल बी 0. दोनों तरफ से a1 0 आ जाएगा. यहां से an की वैल्यू निकाल लो आप. फाइन, डिवाइडेड बाय n प्लस आर स्क्वायर -1. इसके दो केस बना लेते हैं. फाइन, r इज इक्वल टू 1 के ऊपर r इज इक्वल टू, तो जैसे r1 लेंगे a of n -2, so that will be n plus 2 और that will be n. और -1 के ऊपर an -2, -1 से पहला कैंसिल हो जाएगा और इधर से आपका n-. अब आप चेक करो क्या दोनों में से कोई इंफिनिटी जाएगा? ये इंफिनिटी कब जाएगा? जब n 0 होगा या n -2 होगा, बट n की वैल्यू तो हमेशा 2 से बड़ी है. दैट नंबर कैन नेवर गोज टू द इंफिनिटी. सेकेंड नंबर इंफिनिटी जा सकता है, कब जाएगा? जब 2 पे होगा, और 2 आपके पास है, सो दैट नंबर विल गोज टू द इंफिनिटी. इसका मतलब ये आपके पास टाइप 4 से सॉल्व होगा. फाइन, तो इसका मतलब जब भी r इज इक्वल टू 1 है और r इज इक्वल टू -1 पे इंफिनिटी है ना, तो इसका सोल्यूशन तो निकलेगा del y अपॉन del r कॉरस्पॉन्डिंग टू r इज इक्वल टू -1, और इसका सोल्यूशन आप डायरेक्टली निकाल सकते हो. तो सबसे पहले मैं फाइनाइट वाले का निकाल देता हूं. फाइन, -1 के ऊपर आपका इंफिनिटी है ना, तो इसके लिए -1 पे डेरिवेटिव लेना होगा. तो सबसे पहले r इज इक्वल टू 1 पे निकालता हूं. ये मेरा an है. फाइन, यहां पे मैं n की वैल्यू फिल करता हूं 2, 3, 4, 5 एंड सॉल्व करो. कितना आ गया? a2 कितना आ जाएगा? -1, 2 इंटू 4 a0. a3 पे करो, 3 फिल करो, -1, 3 इंटू 5 a1, 3 -1. a4 पे फिल करो, -1, 4 इंटू 5 a2 एंड सॉल्व. यहां पे फिल कर दो वैल्यू. a1 की वैल्यू आपने देखी, a1 0 आया था सभी केस में, तो a1 0. a2 की वैल्यू
यहां से फिल कर दो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 ऑफ A2। A3 जीरो है आपका तो A5 भी जीरो हो गया। A4 की वैल्यू फिल कर दो माइनस 6 एंड 8, सो 2 4 स्क्वायर 6 इंटू 6 इज 6 स्क्वायर इंटू 8 ऑफ A2। फाइन, तो ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले में फिल कर दो A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको मैं y1 का नाम दे रहा हूं। R इज माई 1, A0 पता नहीं है तो A को A0 का A0, A1 इज 0, A2 की वैल्यू है आपके पास, A3 है, A4 है। यू कैन सब्सटीट्यूट ऑल दीज वैल्यूज एट दीज गिवन पॉइंट्स। तो आपके पास A0 कांस्टेंट ले लो, इज द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम कॉल्ड एज द y1। सिमिलरली सेकेंड सोल्यूशन के लिए डेरिवेटिव लेना होगा, देन आई कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। इसके अंदर आप n की वैल्यू 2 3 4 फिल करिए। पहले डेरिवेटिव लेना है, फिर उसके बाद r की वैल्यू फिल करनी है आपको। क्लियर? तो A2 कितना आएगा, A0 कितना हो गया, n की वैल्यू 2 फिल करेंगे तो दैट्स r प्लस 3 और r प्लस 1। सिमिलरली A3 एंड A4, A3 विल बी 0 क्योंकि यहां पे A1 आ जाएगा ना, n इज इक्वल टू 3 पे, तो A1 आपका 0 है। यहां पे A2 की वैल्यू मैंने यहां से लेके यहां पे फिल कर दिया आपके पास। क्लियर? तो इस दोनों की फॉर्मूले में फिल कर दो y इज इक्वल टू एक्स की पावर r एंड सो ऑन। क्लियर? अब आप क्या करोगे इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो जैसे आपने पार्शियल डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू r, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा नहीं, अभी नहीं, क्योंकि r की वैल्यू कितनी है आपकी, r इज माई -3, और -3 पे देखोगे, -3 पे ये इंफिनिटी चले जाएंगे ना सारे, तो पहले कॉमन ले लो, A0 इज अ कॉमन और r प्लस 3 मैंने बाहर ले लिया। फाइन, तो अंदर क्या रह गया आपका, यहां से एक r प्लस 3 रह गया। फाइन, यहां पे r प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस r प्लस 3 का बाहर हो गया, तो आपके पास ये क्वांटिटीज रहे। r की वैल्यू कितनी थी आपके पास, सॉरी -1 थी ना आपकी r की वैल्यू, तो आपको -1 एलसीएम लेना है। फिर जो आपकी वैल्यू थी r की वैल्यू, r इज माई -1, सो दैट विल बी फाइन। तो r प्लस 1 का एलसीएम ले लो। फाइन, r प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर r प्लस 3 होल स्क्वायर। फाइन, और जो आपने बाहर लिया उसको मैंने C1 का नाम लिया। नाउ यू कैन टेक द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करोगे कितना आएगा इसका, डेल वाई अपॉन डेल आर। पहले मैं फर्स्ट वाले का करता हूं, C1 XR log x इंटू ये चीज सारी आपकी ऐसे प्लस C1 x की पावर r। अब ये चीज लिखनी है आपको। फाइन, अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, r का तो पहले 1 हो गया, इस पे प्रोडक्ट रूल लगा दे। फाइन, और आप log लगा लो इस पे आप। फाइन, अदरवाइज ये तो आसान ही है ना, 1 ओवर r प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना होगा, -1 ओवर r प्लस 3 होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस r प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आपको एक log वाला फॉर्मूला बताया था मैंने लास्ट क्लास में, इस वाली क्वांटिटी को आप ऐसा लिख लो। फाइन, r प्लस 5, टेक द लॉगरिथम ऑन द बोथ साइड, सो log 1 विल बी 0, ये ऊपर जाके log की पावर आगे आ जाएगी। फाइन, माइनस log ऑफ r प्लस 5, तो कितना हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 1 ओवर h आएगा ना, तो h को मैं राइट साइड पे ले जा रहा हूं, देन -2 ओवर r प्लस 3 -1 ओवर r प्लस 5, तो h मतलब ये पूरी वैल्यू x4 ओवर होल स्क्वायर, ये आपके पास इंटू -2 मतलब माइनस पावर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन -1 r प्लस 5। नाउ यू कैन सब्सटीट्यूट r इज इक्वल टू -1, तो -1 से ये वैल्यू 0 हो गई आपकी, दैट विल बी 1/2 एंड सो। अब आप देखोगे y1 के अंदर ये आपका y1 है, इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। फाइन, एक 2 कांस्टेंट आपका 2 से बाहर ले लोगे, देयर इज नो इश्यू, दैट इज माय y1। सो आपके पास दो सॉल्यूशन आ गए, एक पार्शियल डेरिवेटिव और एक ओरिजिनल y इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। चलिए एक क्वेश्चन और करवा देता हूं जल्दी से। सबसे पहले कोफिशिएंट को 1 बना लो। फाइन, और इसको आप चेक कर दो, x इक्वल 0 इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसकी ब्रैकेट खोल दो आप।
पेयर कंबाइन कर लो, एक्स की पावर एन प्लस आर, एक्स की पावर एन प्लस आर, तो कितना हो जाएगा ये एन प्लस आर माइनस वन माइनस ऑफ टू, और इधर से एन प्लस आर माइनस वन, एन प्लस आर माइनस वन। फाइन, इसमें से ये चीज छोटी है ना, तो इस वाले में आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, एन की वैल्यू को क्या फिल करें जिससे मैच हो जाए, एन माइनस वन। कहीं पे भी एन लिखा हुआ है 1 2 3 4 और ये 5, इन सभी में एन की जगह पे एन माइनस वन फिल कर दो आप। फाइन, अब आप ब्रैकेट ओपन कर दो, इसकी ब्रैकेट ओपन होगी ना, ये 0 से 1 तक जाओगे, ये पहली वैल्यू तो सेम, पहले आर जीरो एन जीरो फिल करो, आर माइनस फोर ए जीरो एक्स की पावर आर माइनस वन माइनस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू आपकी सेम रह गई। तो ये भी आपके पास एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, दोनों में से समेशन कॉमन निकाल लो एंड वी कैन राइट लाइक दिस मैन। फाइन, इस जीरो को 0x प्लस 0x स्क्वायर कर लो, फर्स्ट वैल्यू विल बी 0, सेकेंड वैल्यू विल बी 0। फ्रॉम दिस साइड a naught must be non-zero, otherwise y will be the zero, r is my 0 and 4, इसमें से a n की वैल्यू आप निकाल। क्लियर? और इसको कुछ और कैलकुलेशन हो सकते हैं, अगर आप इसकी ब्रैकेट खोल दो ऊपर, फाइन, इस n प्लस आर को मैं एक तरह से कुछ भी h ले रहा हूं, लेट्स से h इज माई n प्लस आर, तो ऊपर क्या बन गया h माइनस वन, h माइनस टू डिवाइडेड बाय h ऑफ h माइनस फोर। कैलकुलेशन आसान करने के लिए है, ब्रैकेट खोल दोगे h स्क्वायर माइनस 3h प्लस टू कैंसल, h माइनस फोर, एक h से h भी कैंसिल हो जाएगा, h माइनस थ्री ओवर h माइनस फोर, इस h की वैल्यू यहां पे फिल कर दो। इसका मतलब ये आपका एक्सप्रेशन किस में चेंज हो गया, n प्लस आर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय n प्लस आर माइनस फोर। नाउ टेक द टू केसेस, r इज इक्वल टू जीरो, r इज इक्वल टू फोर, जीरो लेंगे तो कितना आ जाएगा n माइनस थ्री, एन माइनस फोर, और फोर के ऊपर ये आ जाएगी, कोई वैल्यू आपकी इंफिनिटी जाएगी, ये वैल्यू चेक कर लेते हैं पहले, ये इंफिनिटी तब जाएगी जब n जीरो होगा, लेकिन n की वैल्यू तो 1 से स्टार्ट है, तो ये इंफिनिटी नहीं जाएगी। क्या ये कभी इंफिनिटी जाएगी, जब n की वैल्यू 4 आएगी तो इंफिनिटी चली जाएगी आपकी। फाइन, बट 4 से पहले जैसे ये 3 मिला, न्यूमिनेटर में 3 की वजह से ये 0 को चली जाएगी। फाइन, इसका मतलब ये आपका इंफिनिटी कभी नहीं जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप, टाइप नंबर 3 से। फाइन, तो दोनों को अलग अलग से सॉल्व कर लेते हैं। पहले जीरो के लिए ले लेते हैं, जीरो के लिए आपकी वैल्यू क्या थी, जीरो के लिए ये वैल्यू थी ना। फाइन, इसमें फिल करते हैं, एन की वैल्यू 1 फिल करो, सो माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस थ्री ऑफ ए जीरो, मतलब 2 ओवर 3 ऑफ ए जीरो। 2 फिल करते हैं, सो 2 माइनस थ्री माइनस वन, दैट विल बी 1 ओवर 2 ए वन। 3 फिल करते हैं, जीरो, ए थ्री जीरो हो जाएगा, सो व्हाट्सोएवर इंटू ए थ्री, ए फोर के लिए आएगा ना, 4 माइनस वन 3, तो ए फोर जीरो, ए फाइव जीरो, ए सिक्स जीरो एंड सो ऑन। फाइन, इसमें ए वन की वैल्यू फिल कर दो, सो 2 से 2 कैंसल, 1 ओवर 3 ऑफ ए नॉट। फाइन, एंड सो ऑन। तो आप सब्स्टिट्यूशन कर दो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर आर ए नॉट ए वन एक्स प्लस r की वैल्यू जीरो है आपकी, सो एनीथिंग पावर जीरो इज वन, ए नॉट इज माई ए नॉट, ए वन 2 ओवर 3 ए नॉट एक्स प्लस ए वन की वैल्यू तो आपके पास है नहीं। फाइन, यहाँ पे ए नॉट आ जाएगा ना ए वन की फिल, सो दैट विल बी ए नॉट डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, ए थ्री विल बी जीरो, ए नॉट बाहर ले लो, सो 1 प्लस 2x बाई थ्री प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री इज द रिक्वायर्ड फर्स्ट सॉल्यूशन। अब क्योंकि आपकी कोई भी वैल्यू इंफिनिटी नहीं है तो डेरिवेटिव नहीं होना, देन सेकंड केस ले लो, r इज इक्वल टू 4, ये आपका ए एन है, इसके लिए वैल्यू आप निकाल लो, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू क्विकली, एन वन पे 2 ओवर 1 ए नॉट, 2 ओवर 3 ए टू ए वन सॉरी, ए थ्री पे 4 ओवर 3 ए टू, यहां पे वैल्यू फिल कर दो, ए वन की वैल्यू 2 एंड 2 विल बी कैंसल, ए नोट एंड सो ऑन। तो आपके पास सोल्यूशन क्या हो गया, एक्स की पावर आर ए नोट
प्लस a1x प्लस a2x एंड सो ए नोट बाहर ले लो, दैट इज माई आर्बिट्री कांस्टेंट, उसको C2 का नाम ले लिया आपने। तो आपके पास दो सोल्यूशन आ गए, y1 एंड y2 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इज इट ओके? So these questions are as an exercise for you. You can try to solve it by own and let me know if you have any doubt in this lecture. अब आप बताइए नेक्स्ट लेक्चर सीरीज किस टॉपिक पे सुनना चाहते हो? I can upload for you that videos very soon. Till then you can share this video with your friends, like and comments on the videos. Best of luck students. Happy learning.